توبہ 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 آئندہ توبہ میرے خاندان کی توبہ. اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر ہی یہ ایکشن لیا گیا. ظاہر ہے یہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے, اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, اپنا چورن بیچتا ہے, پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور پھر لوگوں کو لوٹتا ہے, اور پھر گندی گفتگو کر کے, بیہودہ الفاظ کا استعمال کر کے, للکارے مار کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں باں پا کے کھول دیاں گا. پرائم منسٹر لیول میں اٹھتا پڑتا ہوں. میرے پیو دی توبہ 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 آئندہ توبہ میرے خاندان کی توبہ. السلام علیکم, میں ہوں مرتضیٰ بٹی. ناظرین, کل کاشف ضمیر کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتا ہے. میں اس وقت سینئر صحافی خرم پاشا صاحب کے پاس موجود ہوں. ان سے جانتے ہیں اس توبہ توبہ میں ان کا کتنا ہاتھ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ صحافیوں نے اپنا کام ڈال دیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پاشا سر, اس میں کتنا آپ صحافیوں کا کردار ہے, کیونکہ کنٹروورسی آپ کے ساتھ اس کی چل رہی تھی ایک بہت زیادہ, جس میں اس نے بہت ہی نازیبا الفاظ کہے اور ایسے ایسے اشارتاً بھی بات کہی کہ وہ میں یہاں پر نہیں کہہ سکتا. تو آیا سی سی ڈی کی طرف آپ نے توجہ دلائی یا پھر سی سی ڈی نے خود ہی اس کو پکڑا؟ دیکھیں, اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اب جن ویڈیوز میں اس کے گن مین نظر آ رہے ہیں, وہ جدید اسلحہ نظر آ رہا ہے, تو وہ سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ موجود تھی. تو اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ میں نے تو نہیں دکھائی, وہ اس کے اپنے جو اکاؤنٹس تھے مختلف سوشل میڈیا کے ان پہ لگی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے پولیس کے کام سوئے تو نہیں ہوئے, سب کی نظر میں آئی ہوگی وہ ویڈیوز, اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر ہی یہ ایکشن لیا گیا. دوسری بات, آپ ہمارا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کارروائی کروائی, تو اس میں کارروائی کروانے کا اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. میں نے ایک پروگرام اس کے حوالے سے ضرور کیا تھا کہ جس میں اس چیز کو میں نے نمایاں کیا تھا کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جب کہ پنجاب میں ویگو ڈالا کلچر کا جو ایک سلسلہ بہت عرصے چل رہا تھا, اس کے خلاف ایک سخت کارروائی کی ہدایات سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں پولیس حکام کو, اور اس کے بعد اسلحہ کی نمائش کے حوالے سے پولیس احکام کبھی بھی اگنور ہی نہیں کرتے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اور جس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ ایک گن مینوں کا جتھا لیے وہ اپنی مومنٹس کو دکھا رہا ہے, اپنے وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہا ہے, اس میں تو کوئی چیز ڈھکی چھپی تھی نہیں. تو پھر ان ویڈیوز پر ایکشن ہوا اور بڑا کوئک ایکشن ہوا. میں سمجھتا ہوں میں نے اس میں پروگرام ضرور کیا تھا, اس میں یہ چیز کی نشاندہی کی تھی, یہ دکھایا تھا, اور پولیس حکام کو میں نے مخاطب کر کے یہ بات کہا کہ ابھی تک آپ لوگ خاموش کیوں ہیں, کیونکہ وہ جو ویڈیوز تھیں وہ پچھلے 3-4 روز سے مسلسل جو ہے سوشل میڈیا پر چل رہی تھی. تو یہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی کیا نام ہے بندہ نہیں تھا کہ جس کو ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم ہو. تو پھر اتنا ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے کہ جب ایک ان نون پرسن کی ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے جس کے بارے میں لوگ کچھ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں, اس نے کوئی ویپن کی نمائش کی ہے, تو پولیس تو اس تک پہنچ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ ایک بدنام زمانہ ٹک ٹاکر ہے اور یہ کیا کچھ کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کہاں ہوتا ہے, کیسے, تو یہ کیسے چھپ کے مطلب کیسے اگنور ہو رہا ہے. تو جب وہ ایکشن ہوا ہے, یہ سارا ایکشن سی سی ڈی پولیس نے کیا تھا, اور اس میں ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سیل ظفر چٹھا نے ایس پی سی سی ڈی آفتاب پھولروان کو باقاعدہ یہ حکم دیا تھا کہ اس پہ کارروائی کی جائے. اور آفتاب پھولروان ایس پی جو ہیں ان کی ہدایت پر پھر ڈی ایس پی سی سی ڈی اقبال ٹاؤن محمد علی بٹ اور ان کی ٹیم نے اس کو, میں سمجھتا ہوں بڑا فاسٹلی اس کو پکڑا, اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی انہوں نے استعمال کیا, اور اس تک پہنچنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اب اس میں ایک چیز, 2-3 چیزیں بڑی واضح نظر آئی نا, کہ جو میں نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ جو اسلحہ نظر آ رہا ہے وہ ممنوع اسلحہ ہے اور جدید اسلحہ ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ اس اسلحے کے لائسنس نہیں ہوں گے. اور وہی بات ہوئی, ان لوگوں سے جو اسلحہ پکڑا گیا ہے یہ لوگ اس کے لائسنس بھی پیش نہیں کر سکے. نمبر 1 چیز یہ. نمبر 2, اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں جس میں وہ سارا اسلحہ پڑا نظر آ رہا ہے, تو کارنر پہ اس کی 2 موٹی موٹی چینیں بھی نظر آ رہی ہیں کروڑوں کی. ٹھیک ہے, ہاں. ابھی وہ تھوڑے دن پہلے ہی اس نے ایک انٹرویو میں ایک خاتون کو یہ بات بتا رہا ہے, جب اس کے زیور کی جو ایک جعلی سونے کا پہنا ہوا ہے,
उससे इसके वैल्यू पूछी जा रही है तो ये कह रहा है कि जी 1 करोड़ रुपए की चेन है, अच्छा 50 लाख की घड़ी। बात काट रहा हूँ, यही आपने चेन आज से तकरीबन 3 साल पहले हाँ। उठाकर दिखाई थी। बिल्कुल और बिल्कुल उस वक्त भी ये डीएसपी मियां शफकत साहब ने कहा था ये सारा जेली है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही इसने था। बाहर आने के बाद कहा था जेली हो असली हो मेरे बाप का है। वो डिटाई है ना जी, कहेगा डिटाई है ना जी, वो ज़ाहिर है ये इस तरह के बयानात देता है, इस तरह की गुफ्तगू करता है, अपना चूरन बेचता है, फिर लोगों को अट्रैक्ट करता है और फिर लोगों को लूटता है। अब इसमें मैं समझता हूँ माज़रत के साथ, कुछ लोगों को मेरी ये बात बहुत तल्ख लगेगी कि इसका दिमाग ख़राब करने में, इस किस्म की हरकतें करने में या उन लोगों को लूटने में जो एक बुनियादी किरदार है उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ने प्रोवाइड किया है कि जो जाके इसको एक सेलिब्रिटी बना के पेश करते हैं। इसका ऐसा कौन सा कारनामा है, मुझे आपको ये कारनामा बताएं, ऐसी कौन सी खिदमात हैं, ऐसी ये कौन सी सेलिब्रिटी है कि जो दौड़ दौड़ के इसके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। और जो लोग इंटरव्यू करते हैं उनमें मुझे कोई दिखाएं कि उसमें किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी ने क्या कभी इसका इंटरव्यू किया, क्योंकि जितने प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं वो सब इसकी करतूत को जानते हैं, उन सब को इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसका पता है, उन सब को पता है कि ये जैली सोना पहनता है, उन सब को पता है कि इसके पास रेंट की गाड़ियाँ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो लोग बाखबर हैं, वो तो कभी इसका इंटरव्यू नहीं करते। अब जो आजकल के जो नए लोग वाबस्ता हो गए हैं सोशल मीडिया से, मैं किसी की हौसला शिकनी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अगर आप इस फील्ड में आ ही गए हैं तो इस माशरे को आप हकीकत दिखाएं, सच्चाई दिखाएं, ना कि ऐसे झूठे लोगों को प्रमोट करें जो लोगों को लूटते हैं बाद में इन चीज़ों की वजह से। वो अपने आप को एक बड़ी शख्सियत जाहिर करते हैं, वो अपने सोने को 1 करोड़ रुपए का बताते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि पता नहीं कितना अमीर आदमी है, जबकि लोगों को बताना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है। वो अगर फ्रॉड ना करे, ये कोई बुराई नहीं है, अगर आप रेंट की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो रेंट की गाड़ियों पे असल नंबर प्लेट हटाकर अपने नाम की नंबर प्लेट लगाना, ये भी एक गैर कानूनी काम है। और उसके बाद ये सोना दिखा के लोगों को, घड़ियां दिखा के लोगों को, अहम शख्सियात के साथ तस्वीर और वीडियोस बनाकर और फिर गंदी गुफ्तगू करके, बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करके, ललकारे मार के आप क्या साबित करना चाहते हो? तो एंड रिजल्ट फिर यही है जो आपके सामने आया। फिर इसलिए कहते हैं कि कभी भी गरूर और तकब्बर से बात नहीं करनी चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह पाक को ये चीज़ें पसंद नहीं है, और इंसान अपनी अपने जो बड़े बोल बोलता है आप उसकी पकड़ में ही आ जाते हो। इस शख्स को इसके बड़े बोल ले बैठे हैं, इसकी भड़के ले बैठी हैं, इसकी बदमाशियां ले बैठी हैं, जो ये ऑन कैमरा करता है, ऑन कैमरा धमकियां लगाता है और कैसे कैसे गलीज़ ज़बान ये इस्तेमाल करता है। ये क्या हमारी सोसाइटी को दिखा रहा है, इस माशरे को क्या दिखा रहा है ये? उनको अल्लाह पाक हिदायत दे, उनके लिए तो मैं दुआ कहूँ कि जो हमारे सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं कि जो इसको एक सेलिब्रिटी, वो इस बात से मुतासर हो रहे होते हैं जी ये सलमान खान को ला रहा है, ये कतरीना कैफ को ला रहा है, ये संजय दत्त को ला रहा है, क्योंकि वो दावे करता है कि मैं उनको ला रहा हूँ। मेरी सलमान भाई, वो सलमान भाई ऐसे बोलेगा कि जैसे बचपन में इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे, इकट्ठे पढ़ते रहे, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। बस वो चूँकि वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, पिछले 3 साल से ये बातें मैं सुन रहा हूँ, और जो भी जाता है इंटरव्यू करने वो खुश हो रहा था कि जब सलमान खान आएंगे आप हमें मिलवाएंगे। लो जी, इसी लालच और चक्कर में लोग इसके पीछे लगे रहते हैं, और यही चीज़ें दिखा दिखा के वो लोगों को लूटता है। लोग समझते हैं इसका बड़ा बाअसर है, इसके बड़े इख्तियारात हैं। मुझे बताएं, अगर ये बाअसर हो और जिन शख्सियात के साथ इसकी तस्वीर और वीडियोज़ आती हैं वो इसके सिफारशी हों, तो फिर इस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, ठीक है, ये पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन चूँकि अब CCD भी किसी प्रेशर में नहीं आती, ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया है ये इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि क्राइम को इन लोगों ने जड़ से ख़त्म करना है। इनको बड़ी सख्त हिदायत है इस वक्त, इनके बड़े अहम टास्क इन लोगों को दिए गए हैं। तो ये जो भी अब क्राइम करेगा और जो भी कोई जुर्म करेगा उसके लिए अब शिकंजा बहुत सख्त हो गया। अब वो पुराने वाले हालात नहीं रह गए, ये बाहर आएगा। पहले भी आया था, पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया था, इसने बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे, और इसका एक मौक़िफ़ होता था कि जी चूँकि मैंने एंगन अल्तान को उससे नहीं मिलवाया, वो नाराज़ हो गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। तब भी वाज़ेह तौर पर या तुर्क एम्बेसी ने बाकायदा
गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि इसने उनके अदाकार के साथ क्या फ्रॉड किया, तुर्क एम्बेसी झूठ बोल रही है। पुलिस ने कार्रवाई की, अपने आला अफसरान के कहने पर उन तक वो लेटर आया जिसमें सारा फ्रॉड बयान किया गया इसका, उन्होंने वो गलत कार्रवाई की, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। ये ज़मानत पे बाहर आके किस ढटाई के साथ, यार मैं तो हैरान हूँ और उन लोगों पे भी हैरान हूँ कि जो इस किस्म के इंटरव्यू चलाते हैं कि किस ढटाई से वो झूठ बोल रहा होता है, वो किस ढटाई से पुलिस अफसरान पे भी इल्ज़ामात लगा रहा होता है। तो उसको तो इस चीज़ का उसकी शर्म ही नहीं ना महसूस होती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा उसकी दुकानदारी नहीं चलेगी। वो झूठ बोलेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, लोगों के सामने अपने आप को एक बड़ी हाई फाई पर्सनैलिटी शो करेगा, तो लोग उसका एतमाद करके उसको पैसे दे देते हैं। अच्छा पाशा सर, ये 2-3 मरतबा मुकदमात में अंदर गया, जेल से बाहर आया है, लेकिन जिस तरह की इसकी अब वीडियो आई है जिसमें ये माफ़ी मांग रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, क्या आपको लगता है अब भी ये बाहर आके उसी तरह की भड़कें और पुलिस वालों के खिलाफ उसी तरह की वीडियोस बनाएगा? मैं समझता हूँ कि जिस वक्त इंसान बाहर आ जाता है, किसी मुसीबत से निकल आता है, ज़ाहिर है उसकी ज़मानत हो जानी है, उसने बाहर तो आना ही आना है, वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों जब भी आएगा, जो भी एक कानूनी प्रोसेस करके उसने बाहर तो आ ही जाना है, ज़मानत उसकी हो जाएगी। बाहर आके अगर वो अब किसी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ बोले इस मामले पे, तो उसको वो लम्हात ज़रूर याद रखने चाहिए माइंड में कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ था। तो अगर इसको उन लम्हात का अगर खौफ होगा तो मेरा नहीं ख्याल ये बोलेगा, वरना वो आदत से मजबूर है। अगर वो बोलेगा नहीं तो अपना चूरन कैसे बेचेगा? वो कोई ना कोई नया फिलर छोड़ेगा बाहर आके, वो कोई ना कहीं आके कोई ना कोई बात ऐसी करेगा कि जिससे वो अपनी फेस से नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये बाहर आके बिल्कुल खामोश हो जाता है, ये अपनी एक्टिविटी लिमिटेड कर देता है, लोगों में घुलना मिलना छोड़ देता है, अपनी टिकटॉक पे वीडियोस नहीं लगाएगा, अपनी वो जेलिस होने की चेन दिखाएगा, तो लोग इसके पास कैसे फंसेंगे? उसने अपनी दुकानदारी तो चमकानी। बिल्कुल चमकानी है सर। सर आपने अपने प्रोग्राम में इसकी चेन के हवाले से एक बात कही है कि ये जहाँ से इस चेन को रंग करवाता है उसके भी इसने पैसे देने। हाँ, ये अभी हालिया गिरफ्तारी के दौरान इंकशाफ हुआ है, बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं, तो मुनासिब नहीं लगता मैं, क्योंकि अगर सीसीडी ने उस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की या सीसीडी के किसी अफसर ने अब तक उस हवाले से ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं की, तो कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसके बहुत सारे इंकशाफात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईमान है, ठीक है, और वो अब आफती रिकॉर्ड चीज़ें हैं। तो उसमें एक ये बात एक सामने आ गई, मैंने हल्की सी बात ही कही है, बातें तो बहुत सारी हैं, खबरें तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें ये एक पता ये लगा कि जहाँ से वो उन सोने की चेनों को वो रंग चढ़वाने वाला काम होता है ना, जिससे वो थोड़ी शाइनिंग आई थी और वो असल सोने जैसा लगता है, तो वो जिस शख्स से करवाता है, रंग महल का वो शख्स है, उसके भी पैसे देने हैं इसने। अच्छा जी, उसका भी डिफाल्टर है। अच्छा सर, इस हवाले से जब ये गिरफ्तार हुआ है तो कोई और भी इस पर मुकदमा आया है या अभी सिर्फ ये नहीं, इसमें तो सिर्फ अभी तक जो 2 मुकदमात हुए थे, जो इसमें वो देखो ना, गरीब जो गार्ड्स हैं उनको भी मरवा गया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गए हैं, उन्हें भी जेल की वाह खानी पड़ी है। तो उसमें ये असले के हवाले से 2 मुकदमा दर्ज हुए थे कि नजायज़ असला सारा था उसमें, और इस तरह एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस ने भी कोई ज्यादती तो नहीं करनी थी, कि जितना उसका जुर्म था जो उसने किया था उसके मुताबिक ही उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उन्होंने की। एक सर आपने मेरे साथ इंटरव्यू में बात कही थी कि हम जो सहाफ़ी हैं, जिसमें सैयद फुरकान अली शाह साहब हैं, आप हैं, यासर शमून साहब हैं, ये एक लीगल काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो हम लोगों का जो एक मामला है जिसमें इसने एक गलीज़ ज़बान हमारे बारे में इस्तेमाल की है, हमें धमकियाँ दी हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं, उसके हवाले से हमारा जो कानूनी प्रोसेस है वो चल रहा है। हम अपना जो एक चीज़ जो पहले दिन की थी आज भी कह रहे हैं कि हम भी उसके लिए जो कानूनी मामलात हैं, जो एक कानूनी तरीका है वो हम इख्तियार करेंगे, और इससे अगर इसकी बातों का जवाब देना है तो हमने अपने पढ़े लिखे अंदाज में देना है और कानून के मुताबिक देना है। हमने कानून से हट के ना तो कोई बात करनी है, ना कानून की खिलाफ वर्जी करके कोई ऐसा काम करना है, क्योंकि हम बतौर साफ़ी हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं पढ़े लिखे जिन पे चलकर हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। बहुत मेहरबानी पाशा सर। नाजरीन, आप काशिफ ज़मीर की तौबा तौबा की वीडियो पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मुझे और पाशा सर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।